بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल की शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दुख तकलीफों को ख़त्म कर दे। अमल के जितने भी शराइत और तरीकाकार थे वो आपके साथ वीडियो से पहले पेश कर दिए गए हैं। अब अमल की तरफ आपको ले चलते हैं। अमल से पहले अमल की अज़ाइमत सुन ले, अज़ाइमत गौर से सुने, किसी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं। स्क्रीन पर भी अज़ाइमत चला दी जाएगी। अलम नशरा दो तगी दो धारी, हबीबे गुफ़ारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी। या जिब्राइल या मिकाईल या इसराफील या इस्राईल बिहक के हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम हाजिर शु हाजिर शु हाजिर शु। अरूज माह 9 चंदी जुमेरात को आप ये अमल करना शुरू करेंगे। बाद नमाज इशा परहेज जलाली और जमाली के साथ ये अमल आप करेंगे और अमल को रोजाना 3125 मरतबा 40 दिन तक पढ़ेंगे। अमल को रोजाना 3125 मरतबा 40 दिन तक पढ़ेंगे और फिर आप इसके आमिल बन जाएंगे। ठीक है, तो अमल को हमेशा काबू में रखने के लिए रोजाना 101 मरतबा विर्द करना जरूरी है। ये अमल हाजराते मुकलीम का अमल है जो सरताज चोटी का अमल कहलाता है। इस अमल के पढ़ने वाले को दुनिया के हर काम में सरकारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद करते हैं और हर काम आप बआसानी इन मुकलीन से करवा सकते हैं। जब भी आपने काम लेना हो तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इन मुवक्किलों से आपने दुआ करवानी है, अपने लिए भी औरों के लिए भी। ये मुवक्किलीन काम क्या कर सकते हैं? ये मुवक्किलीन अगर किसी के घर में साया है, जिन्नात का साया है, चड़ेल का साया है, किसी बच्चे पे साया है, किसी औरत पे, किसी मर्द पे साया है, तो उन सायों को उनके जिस्म से निकालते हैं, उन सायों को, जिन्नातों को पकड़ते हैं। रोजगार जो होते हैं, अपने घरों में परेशान हाल होते हैं, रोजी की वजह से तकलीफ में होते हैं, उनकी जितनी भी बंदिश हो, जो लोग अपनी रोजी के लिए बाहर निकलते हैं, उनकी दुकान की बंदिश वगैरह हो तो तमाम बंदिश खत्म करते हैं। गैब की खबरें, जमीन में दफन शुदा खजाने की इत्ला मुकम्मल आप हिसाब लगा लें कि पत्थर पर लकीर चले, आप कह लें। मुकम्मल जो बात ये कहते हैं वो पत्थर पर लकीर होती है और जो दीगर आमिल को वो इशारे मिलते हैं या वो इशारे देंगे जो उसके लिए रोशनी कायनात के से बढ़कर होंगे कि अल्लाह पाक उसके रूहानी हिजाब के पर्दे खत्म कर देंगे। रिज़्क़ हलाल और आइन इबादत में वो मसरूफ रहेगा। गैर शरई काम इन मुवक्किलीन से ना लें वरना नुकसान होगा। अगर आप किसी बच्ची पर हाज़रात करवाना चाहते हैं तो इसकी उम्र कम से कम 14 साल से ज्यादा ना हो और कम से कम 7 साल से लेकर 14 साल के दरमियान में उम्र हो। और तरीका इसका आपको मैंने पहले भी बताया है कि सबसे पहले आपने हाजराती जादुई स्याही का इस्तेमाल करना है। वो हाथ पर, हथेली पर या अंगूठे के नाखून पर आपने लगा लेनी है अगर आप खुद अमल कर रहे हैं। अगर आप ये अमल किसी बच्ची के ऊपर कर रहे हैं या बच्चे के ऊपर कर रहे हैं तो वही तरीका इख्तियार करें। अगरबत्तियां सुलगाएं, पाकी का ख्याल रखें, पाक साफ होकर वजू करके बैठे तो हर सवाल का जवाब तसल्ली बख्श मिलेगा। जब आप तमाम सवाल जवाब कर लें मुवक्किलीन से तो फिर उनको अस्सलामु अलैकुम कहकर रुखसत करें और उनसे इजाजत तलब करें। इसी के साथ मेरी वीडियो
کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام بیل آئیکن آپ کو بآسانی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔